Welcome listeners, we are listening to the Smart Ice Cream audiobook. Let's listen. Well, I came top of the class again. I got 100 out of 100 for maths and 100 out of 100 for English. I have a very sharp brain, the best there is. There isn't one kid in the class who can come near me. Every year I win a lot of prizes, top of the class, top of the school. I won a prize for spellings when I was only 3 years old. I am a terrific speller. I can spell every word that is. Some kids don't like me, I know that for a fact. They say I'm a show-off. I don't care. They are just jealous because they are not as clever as me. Last week something bad happened. Another kid got 100 out of 100 for maths too. That never happened before. No one has ever done as well as me. A kid called Jerome Dadian beat me. I was sure he cheated. It had something to do with that ice cream. I was sure of it. I decided to find out what was going on. It all started with the ice cream man, Mr. Pepe. He had a van which he parked outside the school. He sold ice cream, all different types. He had every flavor there is. He didn't like me very much. He told me once, "You think you are smart. One day you will be too smart." I just laughed and walked off. I knew he wouldn't do anything. He was too soft-hearted. He was always giving free ice cream to kids who had no money. He felt sorry for poor people. There were a lot of stories going round about that ice cream. People said that it was good for you. Some kids said that it made you better when you were sick. One of the teachers called it happy ice cream. I didn't believe it. It never made me happy. All the same, there was something strange about it. There was a kid at school who had a long nose. When he blew it, you could hear it a mile away. Pepe felt sorry for him. He gave him a small green ice cream every morning for nothing. You won't believe what happened. His nose began to grow smaller. Every day it grew a bit smaller. In the end, it was just a normal nose. I knew where Pepe kept his van at night. I waited until about 11 o'clock at night. Then I crept out of the house and down to Pepe's van. There was no one around when I reached the van. I forced the door open and shone my torch around inside. I had never seen so many tubs of ice cream before. There were apple and banana, cherry and mango, blackberry and watermelon, and about 50 other flavors. Right at the end of the van were 4 bins. It was just as I thought. These were his special flavors. Each one had a writing on the top. This is what they said. Happy ice cream for cheering people up. Nose ice cream for long noses. Pimple ice cream for removing pimples. Smart ice cream for getting smart. Now I knew his secret. Dadian had been eating smart ice cream, that's how he got 100 for maths. Thereafter I decided to finish off the matter. I put some sand that I carried with me into every bin in the van, except for the smart ice cream. Next, I looked at the smart ice cream. I decided to eat some. Not that I needed it, I was quite smart already. Anyway, I gave it a try. I ate the lot. Once I started, I couldn't stop. It tasted good. It was delicious. At last, I left the van and went home to bed, but I couldn't sleep. To tell the truth, I didn't feel too good. I think I have made a mistake. It is the next day now. Something is happening to me. I don't feel quite as smart. I have been trying to do a real hard sum. It is 1 and 1. What does 1 and 1 make? Is it 3 or is it 4?
श्रोताओं का स्वागत है। हम स्मार्ट आइसक्रीम ऑडियो बुक सुन रहे हैं। चलो इसे सुनते और समझते हैं। खैर, मैं फिर से कक्षा में शीर्ष पर आ गया। मुझे गणित के लिए 100 में से 100 मिले और अंग्रेजी के लिए 100 में से 100। मेरे पास बहुत तेज दिमाग है, सबसे अच्छा है। कक्षा में एक भी बच्चा नहीं है जो मेरे पास आ सके। हर साल मैं बहुत सारे पुरस्कार जीतता हूँ। कक्षा में सबसे ऊपर, स्कूल में सबसे ऊपर। जब मैं केवल 3 साल का था तब मैंने वर्तनी के लिए पुरस्कार जीता था। मैं एक भयानक स्पेलर हूँ। मैं हर शब्द का उच्चारण कर सकता हूँ। कुछ बच्चे मुझे पसंद नहीं करते। मैं एक तथ्य के लिए जानता हूँ। वे कहते हैं कि मैं दिखावा कर रहा हूँ। मुझे परवाह नहीं है। वे सिर्फ ईर्ष्या कर रहे हैं क्योंकि वे मेरे जैसे चालाक नहीं हैं। पिछले हफ्ते कुछ बुरा हुआ। एक अन्य बच्चे को गणित के लिए भी 100 में से 100 अंक मिले। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। किसी ने भी मेरे जैसा अच्छा नहीं किया है। जेरोम डैडियन नाम के एक बच्चे ने मुझे पीटा। मुझे यकीन था कि उसने धोखा दिया है। इसका उस आइसक्रीम से कुछ लेना देना था। मुझे इस पर यकीन था। मैंने यह पता लगाने का फैसला किया कि क्या चल रहा था। यह सब आइसक्रीम मैन मिस्टर पेप्पी के साथ शुरू हुआ। उसके पास एक वैन थी जिसे उसने स्कूल के बाहर खड़ा कर दिया था। उन्होंने आइसक्रीम बेची, सभी विभिन्न प्रकार। उसके पास हर स्वाद था। वह मुझे बहुत पसंद नहीं करता था। उन्होंने एक बार मुझसे कहा, आपको लगता है कि आप स्मार्ट हैं। एक दिन तुम बहुत चालाक हो जाओगे। मैं बस हंस पड़ा और चला गया। मुझे पता था कि वह कुछ नहीं करेगा। वह बहुत नरम दिल का था। वह हमेशा उन बच्चों को मुफ्त आइसक्रीम देते थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे। उसे गरीब लोगों पर तरस आता था। उस आइसक्रीम के बारे में बहुत सारी कहानियां चल रही थी। लोगों ने कहा कि यह आपके लिए अच्छा था। कुछ बच्चों ने कहा कि जब आप बीमार थे तो यह आपको बेहतर बनाता है। शिक्षकों में से एक ने इसे हैप्पी आइसक्रीम कहा। मुझे विश्वास नहीं हुआ। इसने मुझे कभी खुश नहीं किया। सभी समान। इसके बारे में कुछ अजीब था। स्कूल में एक बच्चा था जिसकी नाक लंबी थी। जब उसने इसे उड़ा दिया तो आप इसे 1 मील दूर सुन सकते थे। पेप्पी को उसके लिए खेद महसूस हुआ। उसने उसे हर सुबह एक छोटी हरी आइसक्रीम दी, बिना कुछ लिए। आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या हुआ। उसकी नाक छोटी होने लगी। हर दिन यह थोड़ा छोटा होता गया। अंत में यह सिर्फ एक सामान्य नाक थी। मुझे पता था कि पेप्पी ने रात में अपनी वैन कहाँ रखी थी। मैंने रात के 11 बजे तक इंतजार किया। फिर मैं रेंगते हुए घर से बाहर निकला और नीचे पेप्पी की वैन में गया। जब मैं वैन के पास पहुंचा तो आसपास कोई नहीं था। मैंने जबरदस्ती दरवाजा खोला और अंदर अपनी टॉर्च चमकाई। मैंने पहले कभी आइसक्रीम के इतने टब नहीं देखे थे। सेब और केला, चेरी और आम, ब्लैकबेरी और तरबूज और लगभग 50 अन्य स्वाद थे। वैन के अंत में 4 डिब्बे थे। यह वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था। ये उनके खास स्वाद थे। हर एक के ऊपर एक लेखन था। यह वही है जो उन्होंने कहा। लोगों को खुश करने के लिए हैप्पी आइसक्रीम। लंबी नाक के लिए नाक आइसक्रीम। पिंपल आइसक्रीम फॉर रिमूवल्स, पिंपल्स हटाने के लिए। स्मार्ट होने के लिए स्मार्ट आइसक्रीम। अब मैं उसका रहस्य जान गया था। डैडियन स्मार्ट आइसक्रीम खा रहा था। इस तरह उन्होंने मैथ के लिए 100 हासिल किए। इसके बाद मैंने मामला खत्म करने का फैसला किया। मैंने कुछ रेत डाल दी जो मैं अपने साथ वैन में हर बिन में ले गया, स्मार्ट आइसक्रीम को छोड़कर।
इसके बाद मैंने स्मार्ट आइसक्रीम को देखा। मैंने कुछ खाने का फैसला किया। ऐसा नहीं है कि मुझे इसकी आवश्यकता थी, मैं पहले से ही काफी स्मार्ट था। वैसे भी मैंने इसे आजमाया। मैं आया और बहुत। एक बार जब मैंने शुरू किया तो मैं रुक नहीं सका। इसका स्वाद अच्छा था, यह स्वादिष्ट था। अंत में मैंने वैन छोड़ दी और बिस्तर पर घर चला गया, लेकिन मैं सो नहीं सका। सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है कि मैंने गलती की है। अब अगला दिन है, मुझे कुछ हो रहा है। मैं उतना स्मार्ट महसूस नहीं करता। मैं एक वास्तविक कठिन राशि करने की कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए।